जब हमने इनकम की बात कर ली है, देन इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या ये इनकम का जो मेजर है ये हमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बट सपोज एक इंडिविजुअल है हु ओन्स से 100 रुपीज का इनकम है, इस इंडिविजुअल का 100 रुपी पर मंथ। देन देर इज अनदर इंडिविजुअल हु इज अर्निंग से 20 रुपीज पर मंथ। इफ यू जस्ट लुक एट इनकम, then what will you say? You will say that individual one is better off, individual one is richer as compared to individual two. If you look at other aspects of this individual, which is, let's say this individual owns a piece of land which is worth 10,000 rupees, and this individual does not have any debt, is not paying any loan, so this individual does not have any other financial burden. He is earning a lesser amount. Yes, that's true. He is earning 20 rupees per month as compared to individual one who is earning 100 rupees per month. But at the same time, if you look at the wealth of this individual, then he seems to be doing well. Now, if you look at this individual, let's say कि although this individual is earning 100 rupees per month, but let's say this individual is paying a loan, is paying some kind of EMI, which is say 60 rupees per month. Now, if you look at the situation of the two individual, it might seem कि individual two is better off. जब हम बोलते हैं कि किसी इंडिविजुअल के इनकम से हम ये बता सकते हैं कि क्या वो इंडिविजुअल बेटर ऑफ है या नहीं है, that may not always be true. So income may not always give you the right kind of conclusion, because it is possible that someone earning a higher level of income is under heavy debts, is under huge financial burden. So maybe he is earning a lot, but also the outflow is a lot. So he is earning a lot of money, but then जो money उनके हाथ से जा रहा है वो भी बहुत ज्यादा है. So it is important to combine the information of income with the information of wealth. Wealth का मतलब होता है कि total value of assets that an individual has minus total value of liability. एक इंडिविजुअल के पास कितने एसेट्स हैं उसमें से जब आप उस इंडिविजुअल की लायबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको पता लगेगा कि उस इंडिविजुअल की नेट वेल्थ कितनी है. और ये इंडिकेटर एक्चुअली इनकम इंडिकेटर से बेटर इंडिकेटर है इस बात को जज करने के लिए कि क्या दो इंडिविजुअल्स में से कौन सा इंडिविजुअल बेटर है. जैसे हमने यहाँ पे दो इंडिविजुअल्स की बात करी, सेम चीज किन्हीं दो इकोनॉमीज के पे भी एप्लीकेबल है. If there are two economies and let's say one of the economy has a huge amount of income but is also under heavy debts, that economy is paying a huge amount of loans, then maybe that economy is not better off as compared to another economy who may not be earning a very high level of income but does not have financial burden. सो इट इज इम्पोर्टेंट जब भी हम किसी दो इकोनॉमी को कंपेयर करें और बोले कि ये इकोनॉमी बेटर ऑफ है, इट इज इम्पोर्टेंट टू लुक एट द मेजर ऑफ नेट वेल्थ कंबाइंड विद द इंफॉर्मेशन, कंबाइंड विद द मेजर ऑफ इनकम. सो दोनों चीजों को देखने की जरूरत है जब हम फाइनल कंक्लूजन बनाए कि इकोनॉमी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है या इकोनॉमी का क्या सिचुएशन है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट वेल्थ, when we talk about economic wealth like at the national level, then उसको हम national wealth बोलते हैं. Now national wealth का एक important determinant, national wealth किस चीज से determine होती है? कोई economy या कोई individual के पास ज्यादा wealth है वो किस चीज से determine होती है? One very important determinant is called as savings, which a household who saves a lot will definitely have a higher wealth in the long run as compared to an individual who doesn't save. Now it is possible कि आपकी इनकम बहुत ज्यादा है लेकिन आप खर्चे भी बहुत ज्यादा करते हो, तो आप इफेक्टिवली अपने पैसे को सेव नहीं कर रहे हो. यू आर नॉट सेविंग योर इनकम, and if you are not saving your income, then ultimately in the long run you will not be able to maintain a high amount of wealth. So it is not, income is not the whole and sole criteria of judging the situation, the economic situation of an economy or an individual. तो जब हम वेल्थ की बात कर रहे हैं तो वेल्थ का एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट हो जाता है सेविंग.
Someone, an economy who's saving a lot will definitely have a higher level of wealth as compared to an economy who's not saving as much. Savings become an important determinant or an important variable to look at. तो अगेन बिकॉज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो हम सेविंग को भी मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे स्टडी करेंगे, विच इज कॉल्ड एज एग्रीगेट सेविंग। कि एग्रीगेट सेविंग के मेजर्स क्या होते हैं, हाउ कैन वी मेजर एग्रीगेट सेविंग, बिकॉज अल्टीमेटली अगर हमें एग्रीगेट सेविंग के बारे में इंफॉर्मेशन है देन वी कैन एस्टिमेट कि उस इकोनॉमी की वेल्थ कितनी होगी। So, in a very simple, definition, saving of any economic unit is the unit's current income minus its spending. So, basically, income minus expenditure or minus spending will determine your saving. Now, जब हम aggregate saving की बात करते हैं तो हम तीन चीजों को देखते हैं। पहला होता है private saving, दूसरा government saving and third is national saving. Very clearly, जैसे हमने नेशनल इनकम को प्राइवेट इनकम और गवर्नमेंट इनकम में डिवाइड करा है, सिमिलरली हमने सेविंग को भी प्राइवेट और गवर्नमेंट में डिवाइड कर दिया है। सो नेशनल सेविंग वेरी क्लियरली विल बी इक्वल टू सेविंग्स बाय द गवर्नमेंट एंड सेविंग बाय द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो आपको नेशनल सेविंग मिल जाएगी। नाउ व्हाट इज प्राइवेट सेविंग? प्राइवेट सेविंग इज नथिंग बट प्राइवेट इनकम माइनस प्राइवेट कंजम्पशन। So private income हमने अभी पढ़ा है is equal to Y plus NFP plus TR plus INT minus T। ये प्राइवेट इनकम है। इसमें से जब आप प्राइवेट कंजम्पशन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको मिलेगा प्राइवेट सेविंग। देन यू हैव गवर्नमेंट सेविंग। गवर्नमेंट सेविंग अगेन व्हेन यू सब्ट्रैक्ट गवर्नमेंट कंजम्पशन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फ्रॉम गवर्नमेंट इनकम। गवर्नमेंट इनकम हमने पिछले स्लाइड में बोला ये होती है। इसमें से जब हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट कंजम्पशन, गवर्नमेंट के लिए कंजम्पशन क्या होता है? गवर्नमेंट के लिए कंजम्पशन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है। तो जब हम इसमें से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें सेविंग्स ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर मिल जाएगी। रिमेंबर ये सी और ये जी ये सब आपने एक्सपेंडिचर मेथड में पढ़े थे। हमने एक्सपेंडिचर मेथड में बोला था कि Y इज कंप्राइजिंग ऑफ C, I, G एंड NX। So these are exactly those terms. So government saving will be equal to government income minus government expenditure. And ultimately, when you add these two equations, what you will get is called as national saving. पूरे nation की, पूरे economy की कितनी saving हो रही है will be given by these two equations. Sum of these two equations of saving. Private saving specifically अगर हम बात करें तो private saving को किस तरीके से यूज किया जाता है इकोनॉमी में और सेविंग और वेल्थ का एग्जैक्ट क्या रिलेशनशिप है वो हम डिस्कस करेंगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइवेट सेविंग, इट इज क्लियर दैट प्राइवेट सेविंग इज प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम माइनस कंजम्पशन, या एंड वी डू नॉट एक्सक्लूड इन्वेस्टमेंट हियर बिकॉज फॉर द फैक्ट कि हम जब सेविंग की बात करते हैं तो बेसिकली सेविंग हम करंट इनकम माइनस कंजम्पशन ऑन करंट गुड्स एंड सर्विसेज को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो बेसिकली करंट इनकम में से हम स्पेंडिंग ऑन करंट गुड्स एंड सर्विसेज को सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसमें हम इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं निकालते बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज एडिंग टू द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी। तो हम यहाँ पे सिर्फ कंजम्पशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो दिस इज प्राइवेट सेविंग। देन गवर्नमेंट सेविंग इज ऑल्सो क्लियर दैट गवर्नमेंट सेविंग इज नेट गवर्नमेंट इनकम minus government expenditure. So this is the net government income. Taxes minus transfer payments minus interest payments minus government expenditure. Now ये जो यहाँ पे हम government saving की बात कर रहे हैं इसमें भी हम it is possible that this entire G is divided into government consumption and government investment. क्योंकि हम G को basically government expenditure मानते हैं तो अब expenditure consumption पे भी हो सकता है, investment पे भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे जब सेविंग्स की बात करते हैं, सेविंग्स ऑफ गवर्नमेंट, तो हम गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं करते, सिर्फ कंजम्पशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। एंड द रीजन इज द सेम फॉर एज इट गोज फॉर प्राइवेट सेविंग की इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, तो वो हम कंजम्पशन
या स्पेंडिंग ऑन करंट गुड्स एंड सर्विसेज में नहीं इंक्लूड कर सकते। सेविंग्स की डेफिनेशन है करंट इनकम माइनस स्पेंडिंग ऑन करंट गुड्स एंड सर्विसेज, और इन्वेस्टमेंट एक इस तरीके की स्पेंडिंग है जो कि फ्यूचर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए की जाती है या किसी इकोनॉमी के प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए करी जाती है, तो इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे नहीं इंक्लूड करते हैं। जब हम गवर्नमेंट सेविंग की बात करते हैं तो गवर्नमेंट सेविंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज बजट सरप्लस, गवर्नमेंट बजट सरप्लस, जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट रिसिट्स माइनस गवर्नमेंट आउटलेस। सो बजट सरप्लस और सेविंग्स ऑफ गवर्नमेंट इज द सेम थिंग, where budget surplus is equal to government receipts minus government outlays. So ये बेसिकली बस टर्म्स अलग हैं बट बात सेम ही हो रही है। रिसिट का मतलब हो गया जो भी गवर्नमेंट रिसीव करती है सोर्स ऑफ इनकम, और आउटलेस का मतलब हो गया जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। सो इट इज द सेम थिंग एज सेविंग्स। नाउ इट डिपेंड्स कि गवर्नमेंट की रिसिट्स और गवर्नमेंट के आउटलेज में से कौन सी साइड ज्यादा है। सो अगर गवर्नमेंट के रिसिट्स आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट आउटलेज देन वी से दैट द गवर्नमेंट इज रनिंग अ बजट सरप्लस। सरप्लस क्यों? क्योंकि आप as a government you are receiving more than what you are spending, so obviously you are running a budget surplus. लेकिन अगर government receipts government outlays से कम होते हैं then you say that the government is running a budget deficit, और सेविंग्स के टर्म्स में उसको आप नेगेटिव दिखा सकते हो। सो यू आर सेइंग दैट द गवर्नमेंट इज मेकिंग नेगेटिव सेविंग्स, क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी इनकम है वो उससे ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो ऑब्वियसली सेविंग कुछ नहीं हो रही है, बिकॉज इनकम से ज्यादा अगर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो आपकी सेविंग्स एक्चुअली डिप्लीट हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो बेसिकली सेविंग्स नेगेटिव हो रही है जब बजट डेफिसिट होता है, और बजट डेफिसिट कब होता है? जब गवर्नमेंट आउटलेज गवर्नमेंट रिसिट से ज्यादा होते हैं। देन वी डिस्कस नेशनल सेविंग्स। नेशनल सेविंग्स इज सिंपली गवर्नमेंट सेविंग प्लस प्राइवेट सेविंग। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी डिस्कस्ड इज हाउ एग्जैक्टली is private savings used? What are the uses of private saving? This is national saving. Okay, so national saving हमने जब derive करी थी equation, so we said that national saving is income plus NFP minus C minus G. ये हमारा expression था national saving का। Here if you go back to the equations, you will notice कि जब आप इन दोनों को ऐड करोगे then you will get y plus NFP minus C minus G. यहाँ पे हम एक substitution कर सकते हैं in place of y. Y could be written as consumption plus investment plus government expenditure plus net exports. ये हमारी इनकम एक्सपेंडिचर आइडेंटिटी होती है जो हमने एक्सपेंडिचर मेथड में पढ़ी थी, और हम यहाँ पे इसको सेविंग्स के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। व्हेन वी सब्स्टिट्यूट दिस एक्सप्रेशन इन द सेविंग्स इक्वेशन देन वी गेट, इंस्टेड ऑफ y I can write C plus I plus G plus net export plus net factor payments minus consumption minus government expenditure. And then you will notice that consumption and consumption will cancel each other, government expenditure will cancel each other with government expenditure, and expenditure will cancel each other, and you'll be left with investment plus net exports plus net factor payment. So this is precisely what the national saving expression turns out to be, and in fact इसको आप further लिख सकते हो I plus CA, where CA refers to current account balance. Yeah. Now what is current account balance? तो हमने यहाँ पे NX plus NFP, which is sum of net exports plus net factor payments को current account balance से replace कर दिया है। Current account balance basically होता है payments received from abroad in exchange for currently produced goods and services minus payments made to the foreigners by domestic economy. So current account balance basically दो economies के बीच का, not two economies but basically domestic economy और foreign economies के बीच के payments का difference होता है। So यहाँ पे net exports is nothing but the difference in the payments between the domestic economy and the foreign economies. Net exports का मतलब है exports minus imports.
तो एक्सपोर्ट जब आप करते हो तो आप कोई पेमेंट रिसीव करते हो. When you make exports, you receive some payment, and when you import something, you give out some payments. ठीक है, तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट बेसिकली बताएगा कि नेट इनफ्लो कितना हो रहा है इन रिटर्न फॉर द करंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज. सिमिलरली नेट फैक्टर पेमेंट्स भी आपको यही बताता है. नेट फैक्टर पेमेंट्स होते हैं कि कितने पेमेंट्स बाहर जा रहे हैं और कितने पेमेंट्स डोमेस्टिक इकोनॉमी में आ रहे हैं. तो इन दोनों के सम को हम करंट अकाउंट बैलेंस बोलते हैं. और सेविंग्स के एक्सप्रेशन को हम फर्दर यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. रिमेंबर दैट दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर नेशनल सेविंग्स. अब इस एक्सप्रेशन को हम वेरी क्विकली इन द नेक्स्ट स्टेप कन्वर्ट कर सकते हैं प्राइवेट सेविंग्स के एक्सप्रेशन. सो प्राइवेट सेविंग का एक्सप्रेशन क्या होगा? नेशनल सेविंग माइनस गवर्नमेंट सेविंग. व्हेन आई सब्ट्रैक्ट गवर्नमेंट सेविंग फ्रॉम दिस नेशनल सेविंग, then I'll get private savings. तो इस एक्सप्रेशन में अब हम गवर्नमेंट सेविंग्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, then we'll be left with private savings, which will be equal to investment minus government savings plus current account balance. Now this expression clearly tells you कि प्राइवेट सेविंग्स के क्या यूजेस होते हैं. सेविंग comes out to be equal to investment minus government saving plus current account balance. This is also called as uses of saving identity. इस इक्वेशन का एक नाम है और ये भी एक important identity है in macroeconomics, which is called as uses of savings identity. क्योंकि ये एक्सप्रेशन आपको बेसिकली ये बता रहा है कि प्राइवेट सेविंग्स के यूजेस क्या होते हैं. नाउ if you look at this equation carefully, first term here is investment. तो प्राइवेट सेविंग का पहला इंपॉर्टेंट यूज होता है इन्वेस्टमेंट. फर्म्स बोरो फ्रॉम प्राइवेट सेवर्स टू फाइनेंस देयर इन्वेस्टमेंट. जो भी कंपनीज इन्वेस्टमेंट प्लान आउट करती हैं, दे गो टू द प्राइवेट सेवर्स. बेसिकली इन्वेस्टमेंट सेविंग से ही होती है. जो लोग सेव करते हैं, दे invest their money into something. So when a firm wants to buy some capital, then they are supposed to take some loans in return for the capital that they are buying. और usually ये लोन जो होता है ये प्राइवेट सेविंग से आता है. तो प्राइवेट सेविंग का सबसे पहला यूज हो जाता है इन्वेस्टमेंट, जो इस एक्सप्रेशन से हम क्लियरली देख सकते हैं. The second use of private saving is this government deficit. Now, I just told you that whenever the government receipts are less than government outlays, मतलब जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा करती है और उनका जो इनकम होता है वो कम होता है, then the government runs a budget deficit. और यहाँ पे सिंस सेविंग्स के साथ नेगेटिव साइन है, तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइवेट सेविंग्स ऑल्सो हेल्प टू cover up the budget deficit. So whenever the government is running a budget deficit, it borrows from the private savers to cover the difference between their expenditure and their receipt. तो जो भी extra income government को चाहिए होती है to complete their expenditure, they borrow that money from private savers. So private saving का दूसरा important use हो जाता है government deficit को cover up करने का. The third important use of private saving is कवरिंग द करंट अकाउंट बैलेंस. नाउ यहाँ पे करंट अकाउंट बैलेंस को समझना इंपॉर्टेंट है. करंट अकाउंट बैलेंस जब भी पॉजिटिव होता है, उसका मतलब होता है दैट डोमेस्टिक इकोनॉमी हैज मोर पेमेंट्स एज कंपेयर्ड टू द फॉरेन इकोनॉमी. इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि जो भी आउटफ्लो और इनफ्लो हो रहा है मनी का बिटवीन टू इकोनॉमीज, इफ से दिस इज योर डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड दीज आर द फॉरेन इकोनॉमीज, तो जो भी आउटफ्लो और इनफ्लो हो रहा है मनी का इन रिटर्न फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, पॉजिटिव करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ एन इकोनॉमी इंडिकेट्स कि फॉरेन इकोनॉमी के पास लेस करेंसी है टू रिसीव द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम आवर इकोनॉमी, फ्रॉम द डोमेस्टिक इकोनॉमी. A positive current account balance indicates a stronger position for the domestic economy, और वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि फॉरेन इकोनॉमीज जो है उनके पास लेस पेमेंट्स है, मतलब लेस इनकम है, लेस मनी है टू रिसीव द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द डोमेस्टिक इकोनॉमी. सो whenever they are short of money, whenever foreign
economies are short of money, or their money is not sufficient to cover up for the goods and services received from the domestic economy, they borrow from private savers. So current account balance को भी cover up करने के लिए private savings use होती है. So foreign companies or foreign institutions will take loans from the domestic institutions, from the domestic private saving, or they might sell off their stocks and bonds. Foreign companies अपने bonds या stocks को sell off कर सकती हैं so that they can get that extra source of income to make these transactions between domestic and foreign economy. तो थर्ड इंपॉर्टेंट यूज जो प्राइवेट सेविंग का होता है वो होता है करंट अकाउंट बैलेंस को कवर अप करने का. सो दिस एक्सप्रेशन in short tells you about the three important uses of private saving. The first being investment, the second to cover up the budget deficits, the third is to cover up the current account balance.